Okay, so in yesterday's class, we have studied that post-fertilization events, first it will be development of endosperm. Endosperm development is necessary in order to provide nutrition for the growing embryo. Embryo जब grow कर रहा है, तो it require nutrition because there is a continuous a chain of cell division take place one after other, mitotic division. And when the mitotic division take place, naturally they will require a lot of raw material. So where this raw material will come, for that the food is required. Where the food is come from? So the food will be already stored there in the form of endosperm. Why endosperm? Endosperm has got three haploid nuclei, that is 3n state. 3n state means it has got more genetic material, it has got more cytoplasmic content, it has got more nutrition. So that is why endosperm development is necessary. There are some plants in which the endosperm even remain persistent even after the development of embryo. Uh, some amount of endosperm will remain. That endosperm will be used when the plant germinates, the seeds germinates, and it reaches up to the first leaf state. Till then also it can be used. Whereas in most of the other plants, the endosperm get completely exhausted. Some of the example in which endosperm are completely exhausted are given here. That is the pea, groundnut, and bean. Two examples where the endosperm remain persistent, they are given as castor and coconut. Both are starting from C. Okay, now we shall study about embryo. What about the embryo? The embryo is developed from the zygote, and zygote is formed by the fusion of egg cell with the male gamete. Okay, there is one male gamete, and that male gamete, there are two male gamete. After that, one is fused with the diploid, sorry, uh, two haploid nuclei containing polar body, and the other one जो है, that will go and fertilize with the egg cell. So when the egg cell is get fertilized with the male gamete, it forms zygote. अब zygote का आगे का division हमको पढ़ना है. Embryo develops at the micropylar end. Why micropylar end? Because the egg apparatus, what you call is, or the synergids, and on top of that, the egg cell are found at the micropylar end. ठीक है, तो no sooner the pollen tube enters, first thing they'll encounter is the synergid and then the egg cell. So embryo develops at the micropylar end, and the embryo sac where the zygote is situated. The most zygote divide only after a certain amount of endosperm is formed. This line is repeated 3 or 4 times in the same chapter. Okay, so you see how important it is. This is an adaptation to provide assured nutrition. क्या दे रहा है ये? गारंटी दे रहा है कि there will be a assured nutrition. पक्की हालत में उनको nutrition मिल जाएगा. ठीक है? To the developing embryo through seed, sorry, though the seed differ greatly. मोनोकोट में अलग होते हैं, डाइकोट में अलग होते हैं, किसी में बड़े होते हैं, किसी में छोटे होते हैं. नारियल का इतना बड़ा सीड है, जबकि कोकोनट के सॉरी मैंगो के जो है इतने बड़े हैं, जबकि जो सबसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं बैनियन ट्री एंड ऑल, उनके जस्ट राई के बराबर के सीड्स हैं. तो सीड साइज अगेन इज नॉट इन रिलेशन विद द प्लांट साइज. ठीक है, और जो आप फिग के सीड देखेंगे और जो आप बैनियन ट्री के सीड देखेंगे और आप पीपल के सीड आप देखेंगे, कभी आपने सोचा है, कभी देखा है आपने पीपल के, बैनियन के सीड तो देखे होंगे, क्योंकि बैनियन के जितने भी पेड़ हैं और पीपल के जितने भी पेड़ हैं, उनके नीचे कोई ना कोई मंदिर बना है. और कभी कभी आपका सौभाग्य मिला हो, ऐसे मंदिरों में गया हो, कभी वहां पे आपको लाल लाल पके हुए फ्रूट गिरे हुए दिखे हों, कभी उनके ऊपर से गाड़ियां निकल जाती है, काफी सारे बीज बिखरे रहते हैं. ठीक है, तो ये वो बीज है बिल्कुल बारीक बारीक से, नॉट इवन ए साइज ऑफ मस्टर्ड सीड. मस्टर्ड तो फिर भी बहुत बड़ा होता है. इतने छोटे से पेड़ से इतने बड़े बीज से इतने बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं. जबकि उसके रिलेशन में अगर हम देखेंगे, क्या कहते हैं, मटर है, वो तो काफी बड़ा सीड होता है, उसके कंपैरिजन में पेड़ तो छोटा ही रहता है, नॉट नॉट इन कंपेयर टू द सीड साइज ऑफ फिग. और कोकोनट तो आपने देखा ही है कितना बड़ा फ्रूट होता है. मैंगो भी काफी बड़ा फ्रूट होता है. हालांकि तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सीड साइज हैज नथिंग टू डू विद द प्लांट साइज. Okay. Now, though the seed differ greatly, the early stages of embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocotyledon and dicotyledon. याद रखिए आप, मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इनिशियली जो भी है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई ज्यादा
ग्रेट डिफरेंस नहीं है। फिगर 2.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। देखते हैं, यहाँ पे था ना ये, ठीक है। सो दिस इज द ओविसेक, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो ओविसेक है। ओविसेक के अंदर यहाँ पे डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, इनका काम खत्म हो गया है। ये एग सेल है जो कि फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बन गई है। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज चेंज टू पीएन। और ये जो एंटीपोडल सेल थी, इनका कोई काम नहीं था, दे वर सिंपली देयर फैशन के लिए, और इनका काम खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन होना हो गया, तो इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल। अब जो खेल शुरू होता है वो किसका हो रहा है? दिस जायगोट का। We are talking about only this zygote endosperm we already talked about yesterday. So now we are talking about this zygote. तो ये zygote यहाँ आ गया। Zygote में अब continuously a series of mitotic division will take place. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डिवीजन हुआ माइटोटिक, अनइक्वल डिवीजन, एक बड़ी और एक छोटी सेल बनी है। तो बड़ी सेल है वो यहाँ आ जाती है, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगी, एपी सस्पेंसर बना रही है, एक लंबा सा जो है, ये जो छोटी सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होकर के एक स्टॉक बना देती है, जिसको हमने यहाँ पे सस्पेंसर कहा, और ये वाला हिस्सा ऊपर लगा रहता है। उसके बाद जो सस्पेंसर का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां पे खास तौर से माइटोटिक डिवीजन शुरू होते हैं। तो 2, 4, 8, 16, 32, 40, 64 वाली सीरीज बना करके ये पूरा एक हार्ट शेप, पहले तो एक डंबल शेप स्ट्रक्चर बनाए, डंबल के एक क्या कहते हैं उसको, एक क्या कहेंगे, गदा जो होती है ना, उसके जैसे माचिस की तीली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं क्लब। तो ये क्लब शेप स्ट्रक्चर बनाया उसने, एंड उसके बाद इनकी सेल्स रीओरिएंट होती हैं। सम ऑफ द सेल्स जो है वो अंदर की तरफ धस जाती हैं, तो धसने के बाद दे विल फॉर्म ए हार्ट शेप एम्ब्रियो। सो देयर इज नॉट वेरी मच डिफरेंस। यहाँ पे देखिए ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, फिर ये हार्ट शेप हो गया। हार्ट शेप होने के बाद फिर इसकी फर्दर ग्रोथ हो रही है, एंड दीज एक्सटेंशंस व्हिच वर देयर दे फॉर्म कोटिलिडन्स। सस्पेंशन का कोई काम नहीं है। और ये जो बेस पार्ट था इतना सा, उसके अंदर जो है ऊपर वाला पार्ट विल डेवलप इनटू रेडिकल, नीचे वाला पार्ट विल डेवलप इनटू प्रीम्यूल। There is only one difference in the monocot and dicot plants, that in monocot there are 2 cotyledon, whereas in dicot there will be only 1 cotyledon. ये वाला एक ही cotyledon डेवलप होगा, दूसरा नहीं होगा। So ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। उसी वाले को ये जो स्ट्रक्चर है, this one, that is this matured endosperm embryo, that will now take a U-turn and it will come like this. ओके, सो ये रूट कैप बन गया, ये रेडिकल बन गया, ये हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल वर्ड्स यू मस्ट स्टडीड इन द क्लास 11। तो क्या कहता है, हाइपोकोटाइल जो है वो ऊपर की तरफ है और एपिकोटाइल नीचे की तरफ है। दैट विल डेवलप इनटू रेडिकल एंड दिस विल डेवलप इनटू प्रीम्यूल, प्रीम्यूल विल चेंज इनटू शूट एंड रेडिकल विल डेवलप इनटू अ रूट। रूट कैप जो होती है वो ग्रोइंग रूट को अंदर की तरफ जमीन के अंदर घुसने में हेल्प करती है, बिकॉज यहाँ की जो सेल्स है, see when the cells are that the root की जो टॉप की सेल्स है, और अदर एंटायर रूट, किसी भी प्लांट का आपने रूट निकाल के देखा होगा, यंग रूट इज वेरी डेलिकेट। तो वेरी डेलिकेट रूट वो सॉइल के अंदर रास्ता कैसे बना रही है? Naturally they will be uh, getting friction and they will be damaging। तो वहां पे कई सारी सेल्स मरती हैं। तो ये जो रूट कैप है इसके जस्ट नीचे इस जगह, जैसे ये रूट कैप लिखा है इसके, और ये जो लाइन खींची है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक डिवीजन का फेस है, जहाँ पे जो सेल्स हैं वो वेरी तेजी से डिवाइड कर रही है। अगर आपको क्लास 11th के अंदर आपने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 6th चैप्टर में, तो वहां पे दिखा होगा आपको एक मेरिस्टेमेटिक जोन है और इसके एकदम अबाउ जो है देयर इज अ क्यूसेंट जोन। तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन जो है दैट इज डिवाइडिंग very rapidly and adding more cells towards the root cap and again some cells towards inside। तो रूट कैप की सेल जो होती है वो फ्रिक्शन में जैसे जैसे रूट अंदर जाती जाएगी सॉइल के अंदर, वो घिसती जाती है, मरती जाती है, एंड दैट इज व्हाई द मेरिस्टेमेटिक जोन जो है दे आर कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स दिस साइड। ठीक है, so this is what the structure is। cotyledon will store food एंड हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल ये जो है वो इसका एम्ब्रियोनल एक्सेस है ना। जब इसकी बात अगर उसकी कंपैरिजन हम मोनोकोट से करेंगे, तो मोनोकोट में केवल एक ही कोटिलिडन था, दैट विल चेंज इनटू ए स्कुटेलम। एंड ये जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है वो यहाँ पे मिल रहा है, देखिए कॉलियोप्टाइल व्हिच विल बी इक्वल टू द दिस प्रीम्यूल, एंड ये नीचे की तरफ कोलियोराइजा है ना। और कोलियोराइजा जो है वो एक मेम्ब्रेनियस कवर है जो कि रूट
रूट को कवर कर रही है। यहाँ पे ये रूट कैप हो गया, ये रेडिकल हो गया। कोलेप्टाइल जो है वो पोर्शन है जो शूट को कवर कर रहा है, मेम्ब्रेनस, ठीक है। और यहाँ पे शूट हो गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस मच पोर्शन जो है, दैट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दिस इज द कोटिलिडन। सो हियर कोटिलिडन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया स्कूटेलम। तो अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या क्या लिखा है। देखिए फिगर 2.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस जो भी आप कहना चाहें, इज द ऑफ ए डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। द जाइगोट गिव राइज द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली, ये पहला वाला प्रो एम्ब्रियो है, ये वाला, ठीक है। ये एम्ब्रियो मतलब जायगोट है, और ये प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद इन्होंने ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाया, फिर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाया। तो इस तरह से आगे के आगे डिवीजन होते हैं। इनको नाम दे दिया हमने, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ गया, प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप एंड देन मैच्योर। यू सी इन दिस बुक दे आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस फॉर द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ऊपर कुल मिलाकर के एक पैराग्राफ लिखा है छोटा सा, जबकि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में कल हमने पढ़ा था 2-3 पैराग्राफ आ गए थे, एंड दैट वाज वेरी वेरी इलाबोरेट दिस थिंग. So you can understand that how important the embryonic development is. A typical cotyledon embryo consists of an embryonal axis. Embryonal axis के अंदर जो है and two cotyledon. Cotyledon बाहर की तरफ है, embryonal axis वो part है जिसमें hypocotyl and epicotyl है, ठीक है. The portion of the embryonal axis above level of cotyledons are called epicotyl, which terminates with the plumule. तो ये तो बनाएंगे क्या, plumule, जिससे shoot बनेगा. And the cylindrical portion below the level of cotyledon जिनको hypo word जानते हैं, hypogynous condition, epigynous condition. epi का मतलब होता है ऊपर, hypo का मतलब होता है नीचे, ठीक है. तो hypo जो नीचे की तरफ ग्रो करेगी वो रेडिकल बनाएगी. The root tip is covered by root cap. Embryo of monocotyledon possesses only one cotyledon, that's all, ठीक है. And in grass family, ये याद रखना, स्कूटेलम कहाँ पे कहते हैं, this is only in case of grass family. तो ये लिखा हुआ है, देखिए, और सबसे ज्यादा ग्रास फैमिली के होते हैं, हम तो सबसे कॉमनली देखेंगे. तो इन ग्रास फैमिली द cotyledon is called scutellum, that is situated towards one side, ठीक है, lateral to the embryonal axis. The lower end of the embryonal axis जिसको हमने यहाँ पे axis has radical and root cap enclosed by undifferentiated sheath called coleorhiza. एंड मेम्ब्रेन जैसे शीट, एक कवरिंग है, उसको हमने क्या कह दिया, कोलेराइजा, है ना. ये अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ पे कोई आपको कोई टिश्यूज नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम कि भाई यहाँ पे ये पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है. एंड द सेम वे एम्ब्रियो एपिकोटाइल जो है, दैट इज आल्सो कवर्ड बाय दिस शीथ जिसको हम कोलेप्टाइल कहते हैं. तो द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज एपिकोटाइल. एपिकोटाइल अबव द लेवल, कहाँ से लेवल यहाँ से शुरू हो रहा है, और एपिकोटाइल यहाँ पर है, ठीक है. तो इसलिए अबव द लेवल का काम है. हाँ, the portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is called epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow follicular structure, membranous structure. हाँ, उसको हम क्या कह देंगे, coleoptile. तो root is covered by coleorhiza and stem is the shoot is covered by coleoptile, ठीक है. Now soak a few seeds. आपके घर में बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे आपको, गेहूं मिल जाएगा, मक्का मिल जाएगा, चना मिल जाएगा, राजमा मिल जाएगा, मूंग की दाल मिल जाएगी, साबुत मसूर मिल जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, मोठ, है ना. और भी बहुत सारे सीड्स मिल जाते हैं. पूर्व आपके पास सूखे हुए मटर हो सकते हैं, नॉट द फ्रोजन वन, सूखे हुए मटर हो सकते हैं. ये इनको आप रात भर के लिए, आज अभी तो गर्मियां हैं तो एक रात ही काफी है, तो रात भर के लिए इनको पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए. पानी में भिगोने की जगह आप गीले कॉटन के ऊपर रख देंगे, तो अभी नेक्स्ट डे तक इनका जो है सीड कोट लूज हो जाएगा. एंड देन यू कैन स्प्लिट ओपन एंड सी द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. 2-3 डालेंगे तो रोज का एक निकाल के देख सकते हैं कि फर्स्ट डे में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा, सेकंड डे में कहाँ पहुंचा है, थर्ड डे में कहाँ पहुंचा, ठीक है. सो a very small description of the embryo growth is given, ठीक है. Let us concentrate on seed. सीड के ऊपर बात करते हैं. सीड तो हमने पढ़ा था, अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट इज सीड, एंजियोस्पर्म के अंदर.
एंजियोस्पर्म की जो कुल मिला के चाहत है वो यही है कि वो खूब सारे सीड प्रोड्यूस करें, और सीड जो होंगे वो अगली जनरेशन को लेकर के आएंगे। तो हमने पढ़ा था पहले जब अपन चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, तो वी आर स्टडिंग अबाउट द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन एंड सेकेंड जनरेशन। वो उसको हम पूरी तरह से फर्स्ट जनरेशन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी वो फर्स्ट जनरेशन से अलग हो रही है, अटैच है, और सेकंड जनरेशन, तो उन दोनों के बीच का लिंक है। सिमिलरली द सीड इज डूइंग दैट सेम पर्पस। तो हम बात करते हैं इन एंजियोस्पर्म, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ आकर के जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, अब उसके बाद जो होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड दैट विल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइज ओव्यूल। मैंने आपको बार बार बताया कि ओव्यूल कौन सा वाला पार्ट है, वो ये जो ये जो पार्ट है, दिस मच इज कॉल्ड ओव्यूल, और इसके अंदर वाला ये जो है ओविसैक। ठीक है, ओविसैक जो है वो सीड बनाएगा, एंड जो जो इसके बाहर जो है कुल मिला के दो इंटैगमेंट्स है, एंड द इंटैगमेंट्स विल फॉर्म सीड कोट। ठीक है, तो ऑल टुगेदर दे विल फॉर्म अ सीड। तो ये ओव्यूल हो गया, मैच्योर्ड ओव्यूल कह सकते हैं हम इसको, जैसे हम फ्रूट को मैच्योर्ड ओवरी कहेंगे, तो सीड को हम मैच्योर्ड या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कह देंगे। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। क्वेश्चन वेरी कॉमनली मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट? पेड़ इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? फ्रूट क्यों बना रहा है? दो जने हैं और किसी की तो आवाज आनी चाहिए। नहीं हो रहा तो बता दो, नहीं पता सर, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा। अपना वेस्ट प्रोडक्ट मतलब स्टोर करने के लिए कुछ प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रूट्स। वेस्ट प्रोडक्ट तो एक बात है, वो हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन में 10th क्लास में। और देखिए फ्रूट जो है, हमने कहा ना, प्लांट जो है वो रिवॉर्ड्स देते हैं, वो लोग वो एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कुछ टाइप का प्रपंच रचते हैं। तो आप ये देखिए फ्रूट्स जो हैं, दे आर ब्यूटीफुली कलर्ड, दे आर ऑफन हैविंग गुड फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी खुशबू है उसके अंदर, और उसके अंदर जो है वो टेस्टी सा कुछ ना कुछ गुदा या क्या कहते हैं वो रहेगा। तो इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ईटन बाय सम एनिमल्स। तो एनिमल्स को खाने के लिए फ्रूट्स बनाए, उससे प्लांट को क्या फायदा हुआ? प्लांट को ये फायदा हुआ कि हम जो है फ्रूट्स तो खा लेंगे, लेकिन सीड्स हम जनरली नहीं खाते। And it is also that we are not sitting on the tree and eating fruit. जनरली हम फ्रूट को खाएंगे पेड़ के ऊपर से या पेड़ के आसपास से दूर ले जाके। ठीक है, अब अगर हमने चार आम जो है पेड़ पे बैठ के खा लिए होंगे, बाकियों को हम झोले में भर के घर ले आएंगे और वहां पे बैठ के खाएंगे। तो आप पपाया खा रहे हैं, आप मैंगोज खा रहे हैं, आप दूसरे फ्रूट्स खा रहे हैं, मोस्ट ऑफन वी आर ईटिंग फ्रूट अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, एंड वी आर थ्रोइंग और डिस्कार्डिंग द सीड्स अवे, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो ये एक तरीका है पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, ट्रीज के लिए, टू disperse their seed, they are giving attraction, they are giving a reward कि आप आओ हमारे फल खाओ और हमारे बीजों को दूर पहुंचाओ। Often seeds are covered by tough covering, so animal doesn't like them to eat। ठीक है, एक्सेप्ट सर्टेन बर्ड्स जिनको बीज ही पसंद है, तोते होते हैं जैसे, उनको बीज ही पसंद है, तो वो उसको खाएंगे, पर कितना खाएंगे? एक पेड़ में अगर आपने देखा होगा अमरूद के पेड़ के ऊपर तोता बैठ जाता है, पैरेट, एंड इट कीप ईटिंग, वो जो उसका खाने वाला पार्ट है वो तो काट काट के नीचे फेंक देगा, और देन दे विल ईट ओनली सीड्स, बट हाउ मेनी सीड्स? एंड सम ऑफ देम आर डाइजेस्टेड, सम रिमेन अनडाइजेस्टेड, सम सीड को ऐसे ही गल्प कर लिया, वो दूसरे दिन बाहर जाने फीकल मैटर से, एंड देन उन्होंने फीकल कहीं और जाके डिस्चार्ज करा होगा, वहां तक पहुंच गए सीड। दैट इज सेम विद मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स। यू माइट हैव सीन समटाइम द काउ जो होती है वो गेहूं खा लेती है, तो उनका जो गोबर निकलता है उसमें कई सारे गेहूं के सीड मिलते हैं अपन। ठीक है, नाउ नो सूनर दे विल गेट लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर वाटर, द सीड विल जर्मिनेट। सो ये इनका नेचुरल प्रोसेस है। This is the way by which the seeds are taken away from the parent plant. So fruits are actually an attraction for the animals to take their seeds away from the parent plant, so that they may not grow just under the tree, and they may not get water, light, sunlight, and other substances, and they will fail to germinate and they will fail to continue.
तो इसलिए क्या वो पेड़ को दूसरी मतलब बीजों को दूसरी जगह पहुंचा दीजिए, दूर पहुंचा दीजिए, ताकि कोई ना कोई तो खाए और उसको दूर फेंके तो वो कहीं ना कहीं तो कोई पेड़ उगे। तो ये एक तरह का उनका प्रपंच है। ठीक है। नाउ सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। कई बच्चे बोलते हैं कि सर वो फ्रूट को सीड्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सीड्स आर रादर टफ देन द फ्रूट्स। फ्रूट दूसरे दिन ही सड़ जाएगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन में सड़ जाएगा, बट द सीड्स आर टफ इनफ, दे कैन रिमेन फॉर इयर्स। ठीक है। A typical a seed typically consists of seed coat. सीड कोट जो है वो हमने कहा था कि इंटेगुमेंट से बने हैं। मैंने आपको बताया था सीड कोट देखने के लिए आपने क्या है, जब भी राजमा की सब्जी बने घर में या क्या कहते हैं छोले की सब्जी बने, तो आप जब चने को उखाड़ते हैं, खोलते हैं, तो आपको छिलके मिलेंगे, है ना। वो जो छिलके हैं वो इंटेगुमेंट से बने हैं, दे आर कॉल्ड सीड कोट। नाउ सीड कोट आर नॉट ऑलवेज मेम्ब्रेनियस। अब आप क्या कहते हैं किसी किसी फ्रूट में खाएंगे तो दे आर वेरी टफ, लाइक इन मैंगो, दे आर वेरी टफ। ठीक है। बट इन मेनी ऑफ द फ्रूट इट इज थिन। तो मेम्ब्रेनियस हो सकते हैं या टफ हो सकते हैं। कोटिलेडॉन ऑफ द एम्ब्रियो, seed coat and cotyledon and embryonal axis. The cotyledon of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of food reserve. That is the reason हम जो है seeds खाते हैं। जितनी भी दालें हैं हम खा रहे हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं हम खा रहे हैं, कौन से ग्रेन्स, सीरियल ग्रेन्स लाइक गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, हम क्यों खा रहे हैं? बिकॉज वो उनके उनके कॉटिलेडन के अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं। तो दैट इज आवर प्राइमरी फूड। Okay, mature seed may have albumin present in them or that may not be there. If it is there तो हम उसको albuminous कहेंगे, नहीं है तो non albuminous कहेंगे। albumin कौन से पार्ट है? वो एंडोस्पर्म है। तो non albuminous seed have no residual endosperm. non albuminous seeds have no residual endosperm। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कौन कौन थे ऐसे, अपन ने 3 एग्जांपल पढ़े थे वहां पे। जिनके अंदर एल्बुमिन नहीं बचा है, वो जो है अपन ने पढ़ा था, वो क्या कहते हैं मेज है, जैसे कि यहाँ देखते हैं ना अपन ने, ये तो लिख रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं ग्राउंडनट था, और द अदर 2 एग्जांपल मैंने आपको एल्बुमिनस के लिए मैंने कहा था कि कैस्टर एंड कोकोनट है, और ये रहा। हाँ, पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स, ये जो है वो नॉन एल्बुमिनस, इनका सारा एम्ब्रियो वो खा पी मतलब नॉट एम्ब्रियो एंडोस्पर्म वो खा पी के खत्म कर चुके हैं। देखिए नॉन एल्बुमिनस सीड्स एंड नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म as they are completely consumed during embryonic development। एग्जांपल दिया पी एंड ग्राउंडनट, बीन छोड़ दिया, आप उसको भी याद रखिए। Albuminous seed retain their part of endosperm which are not completely used up। तो उनके एग्जांपल देखिए, वीट है, मेज है, बार्ली है, कैस्टर एंड सनफ्लावर है। ओकेजनली इन सम ऑफ द सीड such as black pepper and beetroot, remnant nucellus is also present। इसको हम कहेंगे पेरिस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। पेरिस्पर्म क्या है? जब न्यूसेलस भी बचा हुआ है। न्यूसेलस वो कौन सा था? न्यूक्लियस कौन सा था? वो ओव्यूल का जो इनिशियल स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे 2n सेल्स हैं, उनमें से कोई एक सेल जो है मोटी हो जाती है और वो मदर सेल बनती है, और फिर उसका डिवीजन हुआ, उसके चारों तरफ वाला जो पार्ट था वो न्यूक्लियस था। ठीक है। तो वो जो थिंग है उसको हमने कह दिया, वो भी बचा रह जाता है, तो उसको हम कह देंगे पेरिस्पर्म। ओके। इंटेगमेंट ऑफ द ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव कोट, जिनको हम कह देंगे सीड कोट। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर। आपको मैंने कहा था कि अगर आपको कभी राजमा या कोई चना या कोई बीज आप देख सकते हैं, घर पे मिलते ही है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बीन, राजमा के लो या क्या कहते हैं उसको, चवला वगैरह कुछ भी, है ना। तो ये बीन है। इस बीन में जो सीड है उस सीड को हम देखते हैं। इस सीड में आपको एक स्कार दिख रहा है, ये वो स्कार है जहां से वो अटैच्ड था फनिकल से। तो ये तो स्कार है जिसको हम हाइलम कह देंगे। ये छोटा सा छेद दिख रहा है, ये छोटा सा, दिस मच, दिस स्मॉल पोर इज माइक्रोपाइल। when we soak what a seed in water, the water enter through this micropyle, and it will activate those inactivated enzymes, hormones, जो कि
डॉर्मेंसी के टाइम में काम नहीं करें करके उनको डिहाइड्रेट कर दिया था। तो जब पानी मिलेगा वापस वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे एंड देन दे विल बिकम एक्टिव। ठीक है, तो माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल होल, ये वही होल है जिससे पोलन ट्यूब अंदर गई थी ओव्यूल के अंदर। तो वही जगह पे इंटैगमेंट हमको नहीं मिले थे, इंटैगमेंट वर नॉट फाउंड इन द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वाज द अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द ओव्यूल व्हिच इज नॉट कवर्ड बाय द इंटैगमेंट। वो माइक्रोपाइल जो है वो छेद वहां पर रह जाता है एंड दिस इज द पोर थ्रू व्हिच दे गेट गैसियस एक्सचेंज एंड दे टेक वाटर। ठीक है, तो मॉइस्चर ऑक्सीजन वगैरह सब यहीं से लेंगे। तो बात करते हैं माइक्रोपाइल की। तो माइक्रोपाइल remain as a small pore in a seed. This facilitates the entry of oxygen and water into the seed during germination. Very important. क्या काम हमारा माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल नहीं होता ये आप किसी पेड़ का, आप किसी सीड का सीड को ले लीजिए और उसके माइक्रोपाइल को थोड़ा सा वैक्स लगा दीजिए, वैसलीन लगा दीजिए, पूरा एक सीड ले लीजिए और उसको जो है वैसलीन के अंदर डुबो करके निकाल दीजिए और उसके बाद गाड़ दीजिए। महीनों इंतजार करेंगे तभी वो जर्मिनेट नहीं होने वाला, बिकॉज उसमें पानी जाएगा ही नहीं कहीं से अंदर। ठीक है, और जब पानी नहीं जाएगा तो वो सीड जो है इट इज एज गुड एज इट इज रिमेनिंग इन योर ड्रम। जैसे आप गेहूं को लाके ड्रम में स्टोर कर देते हैं, आजकल तो कहाँ करते हैं, सब आशीर्वाद आटा खाते हैं। बट व्हाट आई मीन टू से इज वी गॉट वीट, हम लेके आते हैं वीट, तो वो वीट जो है हम साल भर रख देते हैं, खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इज ड्राई। ठीक है, एज द सीड मैच्योर its water content reduces and seed become relatively 10 to 12% moisture by its mass। तो उसका जो मॉइस्चर है वो कितना रह गया? उसका 85 to 90% वाटर जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है एंड इट हैज गेट ओनली 10 to 15%। आइडियली जो है सीड को स्टोर करने के लिए 12%, 8 to 12% वाटर रहना चाहिए। 8% में फिर क्या होता है, फार्मर कभी ऐसा करना नहीं चाहेगा बिकॉज उसका काफी सारा लॉस हो जाएगा। 100 किलो में से अगर 10% हाइड्रेटेड है वो, तो इसका मतलब उसका 110, मतलब उसमें 110 वाटर है, अगर उसको 2 किलो सूख जाएंगे, मतलब 2% सूख जाएगा तो 100 किलो का 2 किलो वजन कम हो जाएगा। 1 किलो गेहूं आज की तारीख में 26 से 28 रुपए किलो आ रहा है, 2 किलो का मतलब कितना हो गया? उसको 56 रुपए की चपत लग जाएगी। तो दे डोंट वांट दैट। ठीक है, सो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो स्टोर करने के लिए 10% जो है वो सही रहता है। 10 to 15% यहाँ पे लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज टू स्पीशीज। नाउ the general metabolic activity of the embryo slows down, not completely stop। ये मत सोचिए कि एम्ब्रियो मरा हुआ है, ये मत सोचिए कि सीड मरा हुआ है। सीड जिंदा ही रहता है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है, हाईली रिड्यूस, तो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो। द एम्ब्रियो में एंटर इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या है? डॉर्मेंसी वो स्टेट है इन विच अ सीड इज नॉट जर्मिनेटिंग। क्यों? टिल द फेवरेबल कंडीशंस अराइव। तो वो उसके अंदर उसका एक खुद का तरीका है, एक मैकेनिज्म है, सो दैट इट कैन प्रिवेंट इटसेल्फ अगेंस्ट द एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, जब उसको मॉइस्चर मिल जाएगा, जब उसको गैसेस मिलने लग जाएगी, जब उसको लाइट वाइट मिलने लग जाएगी, वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए, और इफ द फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। ठीक है, but most of the seeds have an ability of going under dormancy। कोई ज्यादातर सीड जो होते हैं वो बनने के बाद इमीडिएटली अगर आप उसको सुटेबल कंडीशन दोगे तभी वो जर्मिनेट नहीं होगा। It will undergo a period of dormancy। Now how long a plant can remain dormant, it further different from plant to plant, seed to seed। ठीक है, इसी बुक में आगे डिस्कस करा हुआ है, किसी जगह पे हम बात करेंगे, अभी तो छोड़ देते हैं। Now the ovule matures into seed। अभी तक यही बात करते हैं, हमने यही कहा था matured ovule is known as seed। तो ovule matures into seed। ओवेरी का क्या होगा? ओवेरी develops into a fruit। Do all fruit forms from ovary? No, there are some fruits which are from some other part than the ovaries। तो जो फ्रूट ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बन रहे होंगे, they are called as false fruit। and the fruits which are formed from the ovary, they are called true fruits। ठीक है, तो देखिए, the transformation of ovule into seed and ovary into fruit proceed simultaneously। दोनों साथ साथ हो रहे हैं, सीड बनना और फ्रूट बनना साथ साथ चल रहे हैं। तो एक बात तो इंश्योर हो गई कि जब तक फ्रूट नहीं बनेगा, जब तक सीड नहीं बनेगा, सीड बनने की तैयारी नहीं होगी, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा,
the fruit will not change, the ovary will not change into fruit. तो अगर आपको फ्रूट खाना है तो पॉलिनेशन होना है, बट नाउ-ए-डेज हमने कई सारे ऐसे मेथड डेवलप कर लिए हैं, तो उसमें क्या है, हम जब कुछ टाइप के केमिकल स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट को पता ही नहीं पड़ता है और प्लांट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो formation of fruit without fertilization of a seed is known as parthenocarpy. We'll discuss here in the next paragraph. चलिए यहाँ बात करते हैं. The transformation of ovule into seed and the ovary into fruit proceeds simultaneously. The wall of the ovary develops into the wall of fruit. तो 3 लेयर बन जाएंगी यहाँ पे. ओवरी की आउटरमोस्ट लेयर जो है that will develop into a pericarp. देखते हैं यहाँ पे मैंगो का दिखा रखा है क्या नहीं दिखा रखा है. कहीं तो दिखा रखा है मैंगो, क्लास 11th की बुक में दिखा रखा है. 11th की क्लास में आपने ये पढ़े हैं पेरिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. डू यू रिमेम्बर? यस सर। हाँ, अच्छा होगा कि हम बार बार बोलते हैं आपको 11th की बुक, 11th की बुक, 11th की बुक. अब क्या कर सकते हैं, 11th भी तो पढ़ना जरूरी है 12th पढ़ने के लिए. तो पेरिकार्प जो है, जैसे अभी इन दिनों आप मैंगोस खा रहे हैं तो मैंगो का जो बाहर वाला छिलका है वो उसका पेरिकार्प है. आजकल आप तरबूज खा रहे होंगे जो वो जो हरे रंग का बाहर का छिलका है दैट इज इट्स पेरिकार्प. ठीक है. अगर आप अखरोट खा रहे हैं तो उसका जो बाहर वाला छिलका है वो उसका पेरिकार्प है. ठीक है, वो तो काफी टफ होता है, जबकि मैंगो का तो हल्का सा है. और अगर आप चीकू का खा रहे होंगे तो पतला सा छिलका है उसका. ठीक है. और अगर आप एप्पल का खा रहे हैं तो और भी पतला होगा. और अगर आप टमाटो को जब प्यूरी बनाने के लिए या सूप बनाने के लिए कई बार टमाटो जो है आप बॉईल कर देते हैं तो बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन निकलती है. ऑल दीज आर पेरिकार्प, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अ फ्रूट. फिर उसमें बीच में एक फ्लैशी रेंज है जिसमें अलग अलग तरह का फ्लैश मिलता है. ठीक है. तो वो उसका मेसोकार्प हो जाएगा. अब अगर आप मटर छीलते हैं तो आपको कोई फ्लैश नहीं मिल रहा उसके अंदर, लेकिन मटर के छिलके जो होते हैं अगर आप उसको यूं टेढ़ा करके फाड़ेंगे तो अगेन उसमें लेयर्स मिल जाती है. द आउटरमोस्ट लेयर इज वेरी थिन, दैट वाज पेरिकार्प. एंड वो जो थोड़ा थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का मिलेगा अगर आप उसको दबाएंगे उसके छिलके को, तो वो जो है मेसोकार्प भी उसी के अंदर है. और अगर आप अखरोट खा रहे हैं तो वो अंदर का जो वो जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, टेढ़े मेढ़े पतली पतली मेम्ब्रेनियस, मतलब वो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर जाली जैसा, वो उसका मेसोकार्प हो गया. और फिर अगर टमाटो खा रहे हैं तो वो जो गूदा है दैट इज, मैंगो खा रहे हैं तो जो गूदा है, और चीकू खा रहे हैं तो जो गूदा है, वो सब इसके मेसोकार्प हो. एंडोकार्प इज द टफेस्ट लेयर ऑफ विच इज फाउंड ऑन द सीड. तो मैंगो का गुठली जो है इसके ऊपर एक टफ सीड कवर मिल रहा है ना, वो एंडोकार्प बना देगा. एंड सेम वे नारियल के अंदर भी तो हम देख सकते हैं, नारियल में है द आउटरमोस्ट ग्रीन कलर मेम्ब्रेनियस जाली मतलब ऐसे थोड़ा सा मोटा जो है स्ट्रक्चर है वो उसका पेरिकार्प हो गया. बीच में जो हस्क मिल रहा है भूसा फाइबर, स्क्लेनकाइमेटस फाइबर, जिसको हम कॉयर कहते हैं, दैट इज मेसोकार्प. एंड जो नारियल का जो टफ सा स्ट्रक्चर है that is its endocarp. तो ये 3 layers हो जाती हैं fruit की. The wall of the ovary develops into the wall of the fruit is called pericarp. The fruit may be fleshy as in case of guava, orange, mango, etc. or may be dry. Dry कौन कौन से थे अभी मैंने आपको बताया, जैसे मटर के अंदर dry, all legumes it has dried. एंड इसके अलावा जितने वॉलनट वगैरह सब जो है, इन ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड, ये सब लेग्यूम्स हैं, ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड, तो वहाँ ये ड्राई हो जाते हैं. मेनी फ्रूट हैव evolved mechanism to disperse seed. देखिए मैंने अभी आपको पहले कहा था कि सीड डिस्पर्सल की टोटल जिम्मेवारी फ्रूट को दे रखी है. तो अब फ्रूट अलग अलग तरह के प्रपंच रचते हैं, उन्होंने खास तरह के अडेप्टेशन डेवलप करे हैं. क्या अडेप्टेशन? या तो वो फ्रूट ही जूसी या टेस्टी होंगे जिससे कोई एनिमल आए उसको खाए और सीड इधर उधर फेंक दे, या फिर in some of the cases the fruit may develop hook like structure or some hairy structure, or in some of the cases you find that बिल्कुल thin hair like structure, so that when the wind comes तो वो ऐसे ऐसे उड़ते हुए क्लास में आ जाते हैं, फिर हम करके उड़ाते रहते हैं उसको. सर कहीं पढ़ा रहे हैं, मैम कहीं पढ़ा रही हैं और आप उसके केवल उसको उड़ा रहे होते हैं.
ठीक है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है, ये तरीके हैं सीड को डिस्पर्स करने के लिए। भिंडी देखी है आपने, भिंडी जो होती है वो हम उसको खा, अगर भिंडी अगर पेड़ पे छोड़ दी जाए, जो किसान छोड़ता है बीज मैच्योर करने के लिए, तो भिंडी एकदम पक जाएगी। पकने के बाद क्या होती है, भिंडी के जो 5 साइड्स हैं वो तेजी से स्प्लिट करती हैं ऐसे, they split open and they discard or they throw the seed out, मतलब वो फटती इतनी तेजी से कि सीड बिखर जाते हैं। पॉपी, अफीम, उसका जो स्टॉक होता है वो तो जमीन से करीब 4 फीट ऊंचा आ जाता है एंड इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। टॉप में खुला है, उसमें छोटी छोटी जाली बन जाती है, छेद बन जाते हैं एंड अफीम के अंदर बिल्कुल बारीक बारीक से राई से भी छोटे वाले सीड्स रहते हैं। सो व्हेन द विंड ब्लोज तो ये ऐसे ऐसे हिलता है एंड इट थ्रोज सम ऑफ द सीड, यस सम ऑफ द सीड। सम ऑफ द फ्रूट जो होते हैं व्हेन दे राइपन, जैसे टमाटो हैं, पक जाने के बाद कोई भी एनिमल, कोई भी चीज, कुछ भी हवा आए, कुछ भी जो उसको टच करता है, पचक फूटते हैं वो एंड दे रिमूव डिस्पर्स देयर सीड। ठीक है, देयर आर मेनी अदर फ्रूट और उनके सीड जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं। अगर कोई फ्रूट किसी बर्ड ने खा लिया तो उसकी बीक पे स्टिक हो जाएंगे। So they will go and sit here and there and they will be just cleaning their beak and they discard or they leave their seeds there. So all these are the different methods of dispersal of seed. You can just have a look on any of the videos on the YouTube about dispersal of seed. Okay. मैं फटाफट से पैरा खत्म कर देता हूँ, 1 मिनट का टाइम है मेरे पास। तो मेनी फ्रूट्स है इवॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, recall the classification of the fruit and their dispersal mechanism that you studied in the earlier classes with relationship between the members of the ovules and ovary and number of seed present in a fruit. Let अभी इसको continue करते हैं। तो let me stop this and this